हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिसीजन टेबल क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, तो कैसे यूज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिसीजन टेबल आर यूज टू मॉडल कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग लॉजिक। अगर कुछ लॉजिक्स हैं जो थोड़े कंफ्यूजिंग हैं और जिनको आपको जिस पॉइंट पे आप सर्टेन डिसीजन लेते हैं, आप चॉइस होती है, वहां पे आप लोग उसके लिए डिसीजन टेबल्स का यूज कर सकते हैं। सो डिसीजन टेबल्स आर यूज टू मॉडल कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग लॉजिक। They can make it easy to see that all possible combination of condition have been considered. तो जब आपके मल्टीपल ऑप्शन हो तो उसमें आपको सारे ऑप्शंस क्या हों, वहां पे चेक कर लिए गए हों उसमें से। अब डिसीजन टेबल प्रोवाइड्स अ हैंडी एंड कॉम्पैक्ट वे टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक। तो डिसीजन टेबल से हम लोग अपने कॉम्प्लिकेटेड चीजों को टेबुलर फॉर्म में बहुत सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। In a decision table, business logic is well divided into the condition and the corresponding action, or the rule for representing the various component that form the business logic. तो हम अपने complicated part को एक tabular form में अपना दिखते हैं कि किस condition में हम लोग in which condition what action should be taken and as per rules. तो the tables are composed of 4 parts. तो जो table होती है उसमें 4 parts होते हैं: condition, action, condition alternative and action for the rules. तो किस condition में कौन से action लेना है, or in case that action is not possible, then what else we can do, and the rules for taking the actions. And when the suppose somebody has doubt regarding between two conditions, then there must be the condition rules which can clarify that what would be the right option. Definition: decision table are used to lay out in tabular form all possible situation which a business decision may encounter. Suppose there could be 3 cause 1 2 3 and corresponding value yes no, either may be yes no. तो combination decision cause effect is matrix होता है structure logic. तो if for the combination 1 2 3 4 5 6 8, so if there are 4 conditions, for all the 4 conditions we have checked yes option and less for the no option. And similarly, like this we shall check out every possible combination for the total 8 combinations. Suppose we are using 3 cases, so 2 raised to the power 3 means there would be total 8 cases. And for all the a condition, either all these cause 1 has 2 option value yes or no, cause 2 has 2 options that yes or no, and cause 3 has 3 or 2 option yes and no. But either may be occur irrespective of the other cause. So there could be called 2 raised to the power 3 or 8 options combinations, and the corresponding effect would be marked as effect is equal to action. So action की for performing the action, the certain condition are marked by the cross symbol here. Now, what is decision table? The table represents the complete set of possible conditional expression. All the possible conditions that could arise are marked in the table, where expression are mutually exclusive in predefined area. But in the area, if there for example for cause 1, either it could be yes or no, not simultaneously. So the expression are mutually exclusive in predefined area. But there could be different combination, all the possible combination between different criteria. So why do we need to use the decision table? इसका जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इससे विजुलाइज करने में और कॉम्प्लिकेशन में सारे ऑप्शन आपको कंफ्यूज करते हैं हमें, और टेबुलर फॉर्म में देख करके हम वी कैन क्लियरली एंड विथ surety we can take that a decision, and we can be assured that we have tried every possible option and there is no ambiguity in it. So we are not repeating the same options again and again because of confusion. तो पावरफुल विजुअलाइजेशन होता है, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर दिखती हैं. कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है. इफ वी विल राइट दिस इन वर्ड, देन इट वुड टेक अ वेरी it will be very time taking, or lot of space would be taken, lot of comments have to be written for every possible case. But in tabular format you write in concise form all the possible condition, and it is easier to understand, and preventing error is easier. So because of this you can check out that this is consistent
and every possibility has been checked. So, and you can check systematically. So the possibility preventing of error is easier. And the next is the modular organization, knowledge organization. So group related rules into single table. So all the possible a group kind of statement, for a kind of statement you can write a single common statement and combine table to achieve a decision, and we can use combine different decision table to take a certain decision. For example, for an ATM machine where a decision table would be of use, a customer requests a cash withdrawal. One of the business rules for the ATM is that ATM machine pay out the amount if the customer has sufficient fund in their account or if the customer has the credit granted. या तो उसके अकाउंट में पूरे पैसे हों या उसके पास क्रेडिट हो कि वो उतना पैसा दे सके. तो a decision table makes the requirement clearer to understand. तो इसको एक बार आप देखिए. जैसे यहाँ पे विथड्रॉल अमाउंट अगर बैलेंस से कम है, तो अगर मान लीजिए बैलेंस से कम पैसे आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा, और आपका एक्शन में ट्रू होगा. और फिर आपका मैं बता रहा हूँ R1 R2 क्या है कंडीशन, इसमें भी अब आगे देखते हैं हम लोग. तो इसके अंदर दिया गया है, और अगर क्रेडिट ग्रांटेड है, या तो आपका विथड्रॉल अमाउंट हो तो भी वो ट्रू हो जाएगा, और अगर आपका क्रेडिट ग्रांटेड है वो ट्रू है अगर विथड्रॉल अमाउंट आपका बैलेंस से कम है. मान लीजिए आपके अकाउंट में 1000 रुपए, आप 2000 निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके बैलेंस से कम पैसे हैं, लेकिन आपके पास क्रेडिट में लेने के लिए 1000 रुपीज हैं, तो भी आपको पैसे एटीएम मशीन से मिल जाएंगे. और अगर आपके पास बैलेंस जो है वो आपका 1000 रुपीज, आप 2000 निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ना तो आपके पास क्रेडिट है और ना ही आपके पास बैलेंस है, दोनों ही फॉल्स हैं, तो इस कंडीशन में आप लोग विथड्रॉ ग्रांटेड फॉल्स होगा. तो अगर या तो आपके अकाउंट में पैसे हैं और क्रेडिट है या नहीं है, उसको मैंने डैश से रिप्रेजेंट किया क्योंकि उसका वो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्रेडिट आपके पास है या नहीं है. इफ यू हैव सफिशिएंट बैलेंस इन द अकाउंट यू कैन विथड्रॉ, बट इफ यू हैव नॉट सफिशिएंट अकाउंट अमाउंट इन योर अकाउंट but you have credit in your account, then you can withdraw. So this is the example of decision table. In the decision table, condition are usually expressed as true and or false. तो above table contains 3 different business rules. तो ये मैंने आपको बता दिया. तो स्टेप 1, पहली बात हम लोग क्या करेंगे, स्टेप कैसे डिसीजन टेबल बनाते हैं, एनालाइज द रिक्वायरमेंट एंड क्रिएट द फर्स्ट कॉलम. तो हम अपनी रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं और उसका क्या करते हैं, एंड क्रिएट द फर्स्ट कॉलम. उसके बाद हम लिखते हैं कि विथड्रॉल इज ग्रांटेड इफ रिक्वेस्टेड अमाउंट इज कवर्ड बाय द बैलेंस ऑफ द, और इफ द कस्टमर इज ग्रांटेड क्रेडिट टू कवर द विथड्रॉल अमाउंट. तो हमारी रिक्वायरमेंट ये हमने लिख दिया है, रिक्वायरमेंट को अभी वर्ड में हमने एनालाइज कर लिया. उसके बाद एक्सप्रेस द कंडीशन एंड रिजल्टिंग एक्शन इन अ लिस्ट सो दैट दे आर आइदर ट्रू और फॉल्स. तो हमको उसको कंडीशन को इस तरह से लिखना है कि करस्पॉन्डिंग कंडीशन या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो. इन दिस केस देयर आर 2 कंडीशन. एक तो 2 कंडीशन को हम एक बार दोनों में से और करके हमने कंडीशन लिखी है. तो कंडीशन लिखी विथड्रॉल अमाउंट इज लेस देन बैलेंस और एंड क्रेडिट ग्रांटेड. तो या तो उसको उतने का क्रेडिट मिला हुआ है, तो देयर इज वन रिजल्ट द विथड्रॉल इज ग्रांटेड. तो अगर मान लीजिए 2 कंडीशन है, एक कंडीशन को हमने लिस्ट किया और एक्शन है विथड्रॉल ग्रांटेड, तो कंडीशन है बैलेंस इज ग्रेटर देन द विथड्रॉल अमाउंट, या तो क्रेडिट ग्रांट उतना उसके अकाउंट में है. तो दूसरा चीज है उसके बाद हम कॉलम ऐड करेंगे. पहले तो कंडीशन लिख ली, उसके बाद हमने एक्शन लिख दिया. तो उसके बाद एक्शन कंडीशन लिख ली. स्टेप 2 में हम कॉलम ऐड करेंगे. कैलकुलेट हाउ मेनी कॉलम्स आर नीडेड इन द टेबल. पता करेंगे कितने कॉलम की जरूरत है. ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर और नंबर ऑफ अल्टरनेटिव के ऊपर. इफ देयर आर 2 कंडीशन एंड ईच कंडीशन कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स, तो दोनों कंडीशन ट्रू और फॉल्स हो सकती है. तो हमारे पास 4 ऑप्शन बनेंगे. इफ देयर आर 3 कंडीशन देन देयर विल बी 8 कॉलम्स. तो इसमें एक कंडीशन थी कि क्रेडिट बैलेंस में है, क्रेडिट नहीं है, और एक में क्रेडिट में भी है, बैलेंस अकाउंट में भी है, वो कंडीशन इसमें छोड़ दी गई है. तो टोटल 4 कॉलम बनेंगे.
तो इसमें एक इसमें से छोड़ दिया गया है जिसमें आपके पास क्रेडिट में भी है, आपके पास बैलेंस भी सफिशिएंट है। तो नंबर ऑफ, अगर कंडीशन पे डिपेंड करता है, एक कंडीशन 2 की पावर के टर्म्स में कहा जाए तो 1 है तो 2 रेस टू द पावर 1, 2 कॉलम्स, 2 है तो 2 रेस पावर 2 4, 3 है तो 2 रेस पावर 3 8, 4 है तो 2 रेस पावर 4 15 एंड 2 5 है तो 2 रेस टू द पावर 5 32 कंडीशंस। ठीक। अब उसके बाद हम लोग का जो स्टेप होगा वो होगा, उन कॉलम्स बन गए, हमारी कंडी रोज बन गई। अब हमारे पास जो टेबल बना है उसमें हम लोग को ट्रू या फॉल्स वैल्यू फिल करना है। तो ये हम लोग बहुत सिंपली फिल कर सकते हैं। तो आप लोग इसमें देखिए यहाँ पे भरा गया है। तो फॉर ईच रो देयर इज ट्वाइस एज मेनी ट्रू फील्ड एज the previous in the previous line. तो repeat the pattern above from the left to right for the entire row. तो इसके लिए हम लोग करेंगे, अब हम लोग 8 कॉलम को सारे कॉम्बिनेशन को लिख लेंगे, और अगर 3 के साथ चल रहे हैं तो जो आपकी वैल्यू जब मैटर नहीं करती है उसको हम लोग डैश सिंबल से मार्क करते हैं। अब द रिक्वेस्टेड अमाउंट इज लेस देन और इक्वल ऑफ द अमाउंट बैलेंस डज नॉट मैटर इज इफ द क्रेडिट इज ग्रांटेड। उसके बाद होता है यू कैन डिलीट द कॉलम दैट हैव बीन आइडेंटिकल। 2 आइडेंटिकल कॉलम को आप डिलीट कर देंगे। अब मान लीजिए हमने बनाया कंडीशंस में विथड्रॉल अमाउंट लेस देन बैलेंस, तो ये ट्रू फॉल्स, तो हमने 4 ऑप्शन के हिसाब से दिया क्रेडिट ग्रांटेड। तो क्रेडिट ग्रांटेड में सारे कॉम्बिनेशन हमने बना दिए, 2 के साथ ट्रू फॉल्स के साथ 2 कंडीशन है तो 4 ऑप्शन बना दिए। अब हम उसमें क्या करेंगे, उसमें डुप्लीकेट कॉलम को रिमूव कर देंगे। यहाँ पर डुप्लीकेट कॉलम आप लोग का तो नहीं है, और कोई इनवैलिड कॉम्बिनेशन नहीं है। तो इसके अंदर लेकिन हम लोग फिर वैल्यू फिल करेंगे। तो रूल 1 रूल 2 बनाया है, बट ऑल्सो कैन गिव देम मोर डिस्क्रिप्टिव नेम्स। हम लोग जैसे बनाए हैं इसको लिख सकते हैं। तो हमने विथड्रॉल ग्रांटेड में बना दिया। अब यहाँ पे आपका दोनों ट्रू है तो उसको आपने एक हटा दिया गया है कंडीशन, एक ही काफी थी। तो हमने लिख दिया है कि दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है। तो केस 1 रुपीज बैलेंस 200, रिक्वेस्टेड अमाउंट 200, तो एक्सपेक्ट विथड्रॉल ग्रांटेड। इसी तरह से आपकी अलग अलग कंडीशन पे चेक किया गया है। अब एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है कि इट इज दैट कि दे मेक इट पॉसिबल टू डिटेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशन दैट वुड अदरवाइज नॉट बी फाउंड। तो इससे हम सारे कंडीशन को कॉम्बिनेशन को सिस्टमैटिकली और विद श्योरिटी चेक कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि डिसीजन टेबल इज नॉट इक्विवेलेंट टू कंप्लीट टेस्ट केसेस कंटेनिंग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट टू डू इन व्हाट ऑर्डर। तो हमको इसमें कौन सा पहले होना चाहिए कौन सा बाद में होना चाहिए इसके बीच में ऑर्डर डिफाइंड नहीं है। However, if we have a lot of combination, it may not be possible or sensible to test every possible combination. और कभी कभी हम लोग कुछ certain option ज्यादा होते हैं, हम डायरेक्ट उनके ऊपर हिट करेंगे instead of checking all the possible combination. तो ये हमारा डिसीजन टेबल के बारे में आप लोग का सारी चीजें डिस्कस हो गई।